हेलो गाइस, हमने पिछले लास्ट वीडियो में कुछ बात किया था कि आइडिया को वैलिडेशन कैसे किया जाता है। कुछ आपको चैटबॉट्स के बारे में बताया था मैंने आपको कि क्यों चैटबॉट का यूज़ करके अपने स्टार्टअप को बिल्ड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सब, ये हमारा तीसरा लेक्चर, और इस लेक्चर में हम सब जानने वाले हैं कि आइडेंटिफाई योर टारगेट सेगमेंट एंड मार्केट साइजेस कैसे हम फाइंड करेंगे। एंड दैट वी हैव टू द फर्दर दिस वीडियो हैव टू forward, then if you have to subscribe this channel and like this video, and you have shared this video on your friends and family, that you have to start your own video startup your business, that we have start your own route through the ventures. Okay, let's begin to start on this video. And how we can achieve, first of all, I will mention that how do you to arrive at the market size. How do you arrive at the if you ask that, first of all questions is how do you can arrive at the market size, and that's and the second question, if you have to ask your identify the target segment. Identify the target segments means that if you have those market, you have to target, you to find out geographical wise, yeah, geographical wise, any type wise, you have to find out, and size of the market. For most important is the size of. If you have to find out the size of the market and understand the target sizes. मार्केट जो आप साइज कौन से मार्केट आप किस इंडस्ट्री को सेलेक्ट कर रहे हो, उस इंडस्ट्री का कितनी बड़ी मार्केट है, और देन वी हैव टू फाइंड आउट द हाउ द बिग द मार्केट एंड हाउ द विच यू मार्केट टू सेगमेंट यू हैव टू टारगेट इट. एंड द थर्ड क्वेश्चन, इफ यू हैव आस्क्ड understand target segment. Understand target segment and size of the market, find out. And if you have to find out the size of the market, then there are the 4 questions if you have to ask, and then we have to the further of the market sizes. And I have tell about the few example of the how could we can finding about the market segment. Market segment. Market segment, how could we can finding about. First of all, if you have to the finding the market segment is geographical wise. First of all, you have to find the market segment is geographical wise. Then you have to the demographic. Demographic wise, if you have to find out on your market segment, and third, behavior wise. Then you have to find out the market segment is behavior wise. There are 3 types, and further we have to tell the geographical wise how could we can finding those target. First of all, you have to find the geographical wise regional, and second you have to city, third you have to the rural, yeah, urban, and then we have to move forward on the demographical wise. Demographical wise, if you have to find out the age, family size, and gender, income,
and occupations and education. If you have to, there are some questions if you have to find. First of all, you have to find out the geographical wise, and then you have to forward the demographical wise, and third you have to the behavior wise. And behavior wise, if you have to find out the benefit and attitude. Then we have to discuss about a few example based, and then forward again. Target sizes. First of all, you have to find which market you have to the target, and how the big the market you have to size. Target customer. Which customer are you have to target? First of all, you have to find, and then forward. There are some questions if you have to ask yourself, and first of questions: any clear benefit of the customers? Any clear benefits that mistake. Sorry guys. Any clear benefit to customer? Any clear benefit to customer that they would pay for? First of question, you have to ask any clear benefit of the customer that they would pay for. And the second of questions is the offering the superior or different. Superior or different. Why the customer you have to the similar that the product? Why customer have to the buy your product? You have to the create, innovate your products, and then the customer you have pay for your product later after you have launching. Pay the customers. Then you have to innovate new products. Any customer benefit. How the larger segment? How the large segment, and we have to ask is horizontal integrating is horizontal integration possible? Is horizontal integration is the possible? There are some questions you have to ask for the customer. First, ask for the target. Find out the target's customer. There are few questions, 4 questions you have to ask yourself. Then move forward. The size of market. Which market you have select, and then you have those market which big. Find out market size. Then you have finding out the market size. How we can the big market and market size find करने के लिए हम क्या करेंगे? Market size. First of all, you have to find the top down approach करना. Top down approach. Broad market. टॉप डाउन अप्रोच करेंगे तो अगर ये ब्रॉड मार्केट है तो टारगेट मार्केट,
and then we have to move forward on the bottom approach. Bottom up approach. Bottom up approach. Store sales. And total market size. Total market size. We have to find out there are some questions of size of the market finding, and few there are the how could we can finding the total market size. Total market size find करने के लिए अगले एक कुछ फॉर्मूला है बेसिक यू हैव टू यूज टू फाइंडिंग द टारगेट मार्केट साइज. टोटल मार्केट साइज. Total market size. Average price of एग्जाम्पल एक अगर हम सब एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो इसी का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इसी का एक एग्जाम्पल को हम लेके चलने वाले हैं. तो टोटल मार्केट साइज को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो एवरेज मार्केट साइज. मार्केट साइज एसी का एवरेज मार्केट साइज पे ले लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर हम करेंगे तो न्यू डिमांड ऑफ एसी. क्या मार्केट में नया डिमांड आ रहा है एसी का. न्यू डिमांड एसी, उसको प्लस करेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ द डिमांड. क्या कौन सा डिमांड जो रिप्लेस हो चुका है एसी का, उस डिमांड से ऐड करेंगे. replaced of demand of AC. Replacement demand of AC. Estimate न्यू डिमांड को क्या करेंगे. एस्टिमेट पहले न्यू डिमांड अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ AC. नंबर ऑफ एसीज मल्टीप्लाई ग्रोथ रेट. मल्टीप्लाई करेंगे ग्रोथ रेट से. इसके बाद हमें क्या करना होगा कि रिप्लेसमेंट डिमांड को अगर हमें फाइंड करना, क्या करना होगा. एस्टिमेट द नंबर ऑफ एसी. नंबर ऑफ एसीज बाय लाइफ स्पैन ऑफ एसी. लाइफ स्पैन क्या है एसी का, उस डिमांड से हमें डिवाइड करना होगा. पहले हम क्या करेंगे, टोटल मार्केट साइज अगर हमें निकालना है तो उसके लिए एवरेज मार्केट साइज से मल्टीप्लाई करेंगे न्यू डिमांड ऑफ एसी को, और न्यू डिमांड ऑफ एसी और रिप्लेसमेंट एसी को जोड़ के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज मार्केट साइज को. तो अगर ठीक है ये निकल जाएगा. अगर आपको न्यू डिमांड ऑफ एसी फाइंड करना तो हम कैसे करेंगे, तो न्यू डिमांड ऑफ एसी निकालने के लिए हमें एस्टिमेट ऑफ एसी को मल्टीप्लाई करना होगा करंटली ग्रोथ रेट ऑफ एसी का ग्रोथ रेट करंटली क्या है. इसके बाद रिप्लेसमेंट डिमांड जो रिप्लेस हो चुका है एसी का, वो डिमांड को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एस्टिमेट ऑफ एसीज करंटली क्या एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ एसी क्या है, और इसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे लाइफ स्पेन ऑफ एसी का क्या लाइफ है, 10 साल है, 5 साल है, 4 साल है, उससे डिवाइड करेंगे तब आगे निकलेगा. ठीक है, चलिए हम निकाल के देखते हैं किस तरह से ये फाइंड आउट होगा. देखते हैं. तो टोटल पॉपुलेशन आया, पहले हमें देखना होगा टोटल पॉपुलेशन क्या है. मैंने पहले वीडियो में बता दिया था और वीडियो में कि इस पॉपुलेशन सब कैसे कैलकुलेट करते हैं, फैमिली कैसे निकाला जाएगा, कितने फैमिली अर्बन एरिया, कितने रूरल एरिया, ये सारी चीज़ मैंने बता चुका ऑलरेडी वीडियो में. यहाँ बेसिक मैं डायरेक्ट यूज करूँगा और आप समझ सकते हैं. ओके.
देन आई टोटल पॉपुलेशन क्या है, टोटल पॉपुलेशन पहले हम यूज करना, टोटल पॉपुलेशन हम लिखेंगे। इसके बाद टोटल पॉपुलेशन कितना, 1.3 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन मान के चलते 1.3 बिलियन पीपल हैं। इसके बाद इस पॉपुलेशन को जब हम जाएंगे, वेट 1.3 बिलियन है, उसको क्या कर देंगे, रूरल एक तरफ लिखेंगे। अर्बन एरिया और ये हमारा आ जाएगा रूरल एरिया। अर्बन एंड रूरल एरिया को लेते हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा कि परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन कितने हैं अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में परसेंट, ये पहले हमें लिखना होगा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। इसके बाद हमें लिखना होगा पॉपुलेशन कितने हैं अर्बन एरिया में, पॉपुलेशन कितना और रूरल एरिया में पॉपुलेशन कितना है। इसके बाद हमें लिखना होगा मेंबर ऑफ पर फैमिली, मेंबर ऑफ पर फैमिली। इसके बाद टोटल फैमिली, इसके लिए थोड़ा यूज कर लेता हूँ जो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। पहले हम देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ फैमिली अर्बन एरिया में कितने रहते हैं और रूरल एरिया में कितने रहते हैं। अगर अर्बन एरिया में देखें तो 30% पॉपुलेशन रहते हैं 1.3 बिलियन के, और अगर रूरल एरिया में देखें तो रूरल एरिया में 70% पॉपुलेशन रहते हैं। तो इसके बाद अगर पॉपुलेशन को अगर हम देखें तो कितने पॉपुलेशन अगर हो गए 376 मिलियन लोग पॉपुलेशन, मतलब इतना रूरल एरिया में रहते हैं, और 877 मिलियन लोग मतलब रूरल एरिया में रहते हैं। और फैमिली वाइज अगर हम निकाल के देखें तो कितने आ जाएंगे, आप फैमिली वाइज आ जाएंगे अर्बन एरिया में 5 फैमिली पर होंगे पर फैमिली मेंबर। एक फैमिली मेंबर में जैसे एक फैमिली है तो उस फैमिली में 5 मेंबर होंगे अर्बन एरिया में, और रूरल एरिया में अभी 5 ही हैं। और अगर हम टोटल करके निकालें 75 मिलियन लोग और 175 मिलियन फैमिली, मतलब कि टोटल फैमिली मेंबर हमें निकाले तो 75 मिलियन फैमिली मेंबर हैं, मतलब कि टोटल फैमिलीज अलग अलग हैं फैमिलीज, और अर्बन एरिया में, और रूरल एरिया में 175 मिलियन फैमिली मेंबर्स हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो मार्केट साइज फॉर बर्गर, इस तरह हम बर्गर का मार्केट साइज को अगर एस्टिमेट करके देखें तो निकाल के देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हमने इसी का निकाला, इधर बर्गर का निकालते हैं। बर्गर मार्केट साइज, how could we can finding the burger market size? First of all, you have to self learn and self work for you have to निकालिए अपने से इस सवाल का कैसे फाइंड करें अलग अलग मार्केट के सेगमेंट को, मार्केट साइज को। इसका वीडियो देख लीजिएगा जब बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अगर देखना तो देख लीजिए, अलग अलग मार्केट का फिर से निकाल के देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। टोटल पहले क्या करेंगे हम, टोटल मार्केट साइज ऑफ द बर्गर चेन, मार्केट साइज बर्गर चेन।
बर्गर चिली का टोटल मार्केट साइज क्या है, इसके एवरेज प्राइस ऑफ बर्गर क्या होता है, एवरेज प्राइस इंडिया में बर्गर का क्या है, एवरेज प्राइस बर्गर को मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर ऑफ आउटलेट, एंड estimate the number of burgers sold per outlet, estimate number of burger sold per outlet, से कितने बर्गर पर डे बिक रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमें देखना होगा कि बर्गर सोल्ड पर आउटलेट निकालेंगे, बर्गर सोल्ड पर आउटलेट सेल दिन का हो जाएगा, ओपन फ्रॉम 8 से 10, कुछ देख लेते हैं। आउटलेट आप लिख दीजिएगा, आउटलेट सेल्स क्या हो रहा है, और ओपन टाइम क्या है आउटलेट का, फ्रॉम 8 AM से 10 बजे PM तक का आउटलेट का टाइमिंग है। मतलब कि आउटलेट खुलता है हमारा, आउटलेट जो भी है अलग अलग जगह पे वो आउटलेट खुलेगा 8 से 10। और इसके बाद हमें क्या करना होगा कि चाहने के बाद पिक क्या है, मतलब कि आउटलेट जो होता है कौन से टाइम पे सबसे ज़्यादा मतलब कस्टमर आउटलेट पे आते हैं, विच टाइमिंग, और नन पिक टाइम, नन पिक टाइम क्या है कस्टमर का, जब कस्टमर उस समय नहीं आते, नहीं हो रहा, तो टाइम अगर लिखेंगे यहाँ लिख लेते हैं टाइमिंग, तो 12 नून से 3 PM तक है, 7 PM से 10 PM तक है। और नन पिक टाइम जो हमारा है 8 AM से 12 नून तक, 3 PM से 7 PM तक, ये हमारा नन पिक टाइम है। और ये हमारा पिक टाइम जिस समय कस्टमर ज़्यादा आते हैं 12 नून से 3 PM तक, और 7 बजे से 10 PM तक, ये ज़्यादा इस समय ज़्यादा कस्टमर रहते हैं। और नेक्स्ट फॉरवर्ड अगर हम देखें तो टोटल आवर क्या था, 6 घंटे पिक टाइम में जब कस्टमर आते हैं, और 8 घंटे नन पिक टाइम। तो हम इस समय कर क्या सकते हैं, तो आगे अगर देखें तो टोटल आवर तो निकाल लिया हमने। ऑर्डर प्रीमियम, ऑर्डर पर मिनट में ऑर्डर कितना आता है, अगर 1 मिनट लेके हम चल रहे हैं तो 0.25 ऑर्डर पर आवर, ऑर्डर पर आवर आता है 60 मिनट में, मतलब 60 मिनट में 15 लगभग आ ही जाता है ऑर्डर, अजीब कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो ऑर्डर पर डे, पर डे के हिसाब से ऑर्डर अगर आ रहा है तो 360 दिन में से 120 आ ही जाता है। एंड बर्गर पर ऑर्डर, बर्गर पर ऑर्डर कितना आता है, 2 बर्गर सोल्ड पर डे
बर्गर सोल्ड पर डे 720, 240 हमने ये निकाल लिया। इसके बाद हमें क्या करना होगा, टोटल बर्गर सोल्ड पर डे आउटलेट दिन के हिसाब से निकालना होगा। टोटल बर्गर सोल्ड पर आउटलेट दिन के हिसाब से निकाल लेंगे तो आ जाएगा 960 आ गया। और हमें क्या करना होगा, 100 रुपये को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के हिसाब से, तो 300 बर्गर बिक रहा है और 120 मतलब 1200 का ही आ गया। 1200 रुपीज़ का है, 13.6 रुपीज़ 365 कि मैं फॉर्मूला बैठा रहा हूँ, मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था और उसी फॉर्मूला पे मैं चेक कर रहा हूँ। मैंने फॉर्मूला इस बार नहीं लिखा है। ये सब हमने तो निकाल लिया। अब हमें क्या करना होगा कि 1 मिनट, ओके हाँ, अब हमें देखना होगा कि कैसे बर्गर की मार्केट निकालना है। सोल्ड पर आउटलेट, ओपन आवर दे देंगे होम डिलीवरी ऑर्डर, होम डिलीवरी ऑर्डर है ओपन आवर, ओपन फ्रॉम 8 AM to 10 PM। ओपन आवर ये है 8 AM to 10 PM। एंड पीक आवर हमें पहले लिखना होगा, पीक आवर किस समय ज़्यादा हमारा बर्गर बिकता, और नन पीक आवर है, नन पीक आवर है। दोनों टाइम को हम जब ले लेते हैं, नन पीक आवर हमारा पीक आवर था 12 नून से 3 PM तक, ये हमारा पीक आवर था, और 7 PM से 10 PM तक हमारा पीक आवर था। ये इसमें ज़्यादा बर्गर हमारा बिकता है। और 8 AM से 12 AM तक नन पीक आवर था, 3 से और 7 PM तक 7 PM तक नन पीक आवर था, जिसमें हमारा बर्गर बहुत कम बिकता था। उसके बाद कुछ फॉर्मूला पे इस फॉर्मूला पे हम सेट करेंगे। इसके बाद हम निकालेंगे तो मार्केट साइजेस को। टोटल आवर हमारा पिक टाइम था 6 आवर का, जिसमें हमारा बर्गर कस्टमर ज़्यादा आते हैं, जब बर्गर ज़्यादा बिकते थे उसमें पीक आवर था। और नन पीक आवर में 8 घंटा था हमारा नन पीक आवर। नन पीक आवर से हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर पर मिनट के हिसाब से हमारा ऑर्डर कितना आ रहा है, पहले हम ये देखेंगे। पर मिनट ऑर्डर, पर मिनट के हिसाब से हमारा ऑर्डर जो आ रहा है मान के चलते हैं 0.2 आ रहा है, ठीक है। और नन पीक आवर में हमारा ऑर्डर आएगा 0.1 आ रहा है। ये हमारा नन पीक आवर का डेटा है। अगर इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ एग्जाम्पल को पर आवर के हिसाब से कितना आएगा हमारा, पर आवर के हिसाब से हमारा आएगा 12 बर्गर बिक रहा है पर आवर के हिसाब से पीक आवर में। और अगर वही नन पीक आवर में देखते हैं तो यहाँ 6 बर्गर बिक रहा है नन पीक आवर में।
नन पीक आवर में हमारा 6 रुपये। अगर उसी तरह अगर हम जाएँ ऑर्डर पर डे के हिसाब से पर डे के हिसाब से अगर ऑर्डर पे अगर हम जाते हैं तो 72 ऑर्डर पर डे के हिसाब से हमारा हो रहा है। ठीक है, ये हमारा पर डे के हिसाब से ऑर्डर है। तो पीक आवर में ये हमारा, और नन पीक आवर में 48 पीक है पर डे के हिसाब से। तो नन पीक आवर में हमारा ज़्यादा बिक रहा है, तो यहाँ पर नन पीक आवर में हमारा पर डे के हिसाब से ज़्यादा बिक रहा है। पर अगर हम अलग सेगमेंट और भी देखते हैं तो बर्गर अब पर ऑर्डर कितना हो रहा है, इनमें से बर्गर पर ऑर्डर कितना है, 2 है, और नन पीक आवर में भी 2 ही होगा। अगर इसके बाद बर्गर पर डे के हिसाब से सोल्ड कितना हो रहा है, बर्गर पर डे के हिसाब से सोल्ड कितना हो रहा है, एक 144 बर्गर पर डे के हिसाब से ये हमारा सोल्ड हो रहा है बर्गर। और नन पीक आवर में हमारा सोल्ड हो रहा है 96 है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे कि बताया था कि फॉर्मूला एक टोटल, यहाँ क्या करेंगे, टोटल बर्गर सोल्ड पर डे और पर आउटलेट, पर डे और पर आउटलेट और होम डिलीवरी के हिसाब से हम निकालते हैं 240 है। ये हमारा टोटल बर्गर जो है, टोटल बर्गर सोल्ड जो है ये पर डे के हिसाब से है, होम डिलीवरी भी है और पर डे के हिसाब से और पर आउटलेट पे है। ठीक है, इसके क्या करेंगे कि टोटल बर्गर सोल्ड पर डे पर आउटलेट, अगर दिन के हिसाब से दिन के हिसाब से पहले निकाल लेंगे कितना है और उसमें ऐड कर देंगे होम डिलीवरी जितना हमने किया है। होम डिलीवरी ऐड करने के बाद हमारा आता है कि 1200 बर्गर। हमने क्या किया कि बर्गर टोटल जो हमारा बर्गर सोल्ड हो रहा बिक रहा है, जो भी बर्गर पर डे के हिसाब से और पर आउटलेट के हिसाब से, जैसे कि हमारे पास 5 आउटलेट है तो 5 आउटलेट में पर आउटलेट से 5 ही बिक रहा है, तो पर आउटलेट से 5 बिक रहा है तो उसको ले लीजिए, और पर बर्गर कितना बिक रहा है उसे ले लीजिए। इसके बाद और उसमें हमने क्या किया कि दिन के हिसाब से निकाल लिया, पर डे के हिसाब से कि 5 बिक रहे हैं, 10 बिक रहे हैं बर्गर, जो भी बिक रहे हैं वो ऐड कर लीजिए, और आपके आउटलेट से जितना बिक रहा है पर डे के हिसाब से, और होम डिलीवरी कितना और उसे कलेक्ट कीजिए, दोनों को जोड़ के आपका निकल जाएगा टोटल बर्गर कितना सोल्ड हो रहा है। ये 1200 बर्गर आपका हो रहा है। इससे आपको पता चल जाए कि आपके मार्केट सेगमेंट, मार्केट साइज कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी मार्केट है, इससे हम पता कर सकते हैं। एंड वी हैव टू द फर्दर नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस we have to discuss the productivity of marketing demands, productivity of market demands on। इस वीडियो में हमसे बात करने वाले प्रोडक्ट्स ऑफ मार्केट डिमांड्स ऑन पे नेक्स्ट वीडियो में हमसे बात करेंगे। इसमें कुछ टास्क मैंने दिया था, क्वेश्चंस आप प्रीवियस अगर वीडियो का आपने कर लिया है, अपने आइडिया को फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इसके बाद आप मार्केट साइज को फाइंड आउट करने के लिए कुछ क्वेश्चन था, ये सब आप खुद से फाइंड कीजिए क्वेश्चन को। इसके बाद आपको पता चलेगा कि मार्केट कितनी बड़ी है, क्या आपको उस मार्केट में जाना चाहिए। अगर छोटी मार्केट है तो आप इंटर मत कीजिए, बहुत बेनिफिट आपके लिए होगा कि जब छोटी मार्केट रहती है तो कोई भी उसमें जाना नहीं चाहता और उसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा, आप वहाँ सर्वाइव ज़्यादा समय तक कर भी नहीं पाएंगे अगर उसमें बिक जाएंगे सब कंपनी सब। तो
अबे ये ऐसी मार्केट आप देखिए कि जहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट हो और डिमांड भी ज़्यादा और सप्लाई भी ज़्यादा हो। डिमांड एक तरह से देखिए, डिमांड और सप्लाई पे आपको ध्यान देना होगा कि क्या डिमांड कस्टमर की ज़्यादा हो पर सप्लाई कम हो। आज के समय में अगर मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ तो मेंटल हेल्थ एआई के बारे में, तो मेंटल हेल्थ एआई में आज के समय में डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोविड के समय में लोग आइसोलेट हो चुके थे। लोगों के पास ऑप्शन नहीं था कि बाहर जाना। कोरोना की वजह से लोग घर पे रहते थे, कुछ एक्टिविटी नहीं, और नेगेटिव न्यूज़ हर तरफ से नेगेटिव सुन रहे थे लोग। किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती थी, कई बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से कोरोना में लोगों को स्ट्रेस होता था घर पे रह के। कई महीनों तक घर पे रहते, कई दिनों तक नहीं निकलते, लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को घर पे रहने के बाद स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की बीमारियाँ होने लगी। उस समय से जो मार्केट जो पीक किया है, लगभग $500 बिलियन की मार्केट आज के समय में है मेंटल हेल्थ एआई की। आपको इस तरह से देखना होगा, फाइंड करना होगा कि किस तरह से मार्केट हम फाइंड करें और कौन सी बड़ी मार्केट है। छोटी मार्केट में जाके कोर्स रहता नहीं, आप वहाँ लॉस करोगे और कुछ नहीं होगा, तो कुछ समय तक आप वहाँ रहोगे, फिर वहाँ से छोड़ के निकल जाओगे। और इससे जगह आप टाइम क्यों दो, पहले आप फाइंड करो आपके आइडिया के, कुछ सेलेक्ट करो आइडियाज को, उस आइडियाज को देखो, इसके बाद मार्केट फाइंड करो, क्या मार्केट बड़ी है या छोटी मार्केट है। अगर छोटी मार्केट जाके कोई फायदा नहीं है, उसके आइडिया को वहीं ड्रॉप कर दो आप। इसके बाद देखो नेक्स्ट आइडिया क्या है। अगर वो मार्केट बड़ी है, क्या उसमें आप सर्वाइव कर पाओगे, सही है। आपका यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग प्राइस क्या है आपका, आप कस्टमर को क्या यूनिक दे रहे हो वो देखो। कस्टमर आपके पास खुद आपको एडवांस कस्टमर पे करेगा, वो देखना होगा आपको। अगर आप सभी की तरफ सिमिलर करोगे, सभी कस्टमर जो बेच रहा है आज के समय इंडिया में क्या करता है कि जो यूएस में बिक गया है, अगर वो चल गया, अब वो क्या करते हैं वहाँ के कॉपी केट यहाँ पे लाके वो बेचने की कोशिश करते हैं, वो नहीं चलेगा। यूएस की मार्केट इंडिया की मार्केट से टोटली डिफरेंट है। यूएस में आज के समय में आप एक एग्जांपल लेते हैं तो ग्रोसरीज की मार्केट में यूएस में वीकेंड में जाते हैं कि वो ग्रोसरीज खरीदते हैं। इंडिया में आज के समय में डेली जाएंगे ग्रोसरीज की मार्केट पे, किराना दुकान पे खरीदने के लिए। इंडिया में मार्केट एमआरपी एक आता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसकी वजह से इंडिया में बिजनेस रिटेल में बनाना बहुत टफ है, क्योंकि आप बना नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ पर एक प्राइस, गवर्नमेंट प्राइस एक टैग कर दिया कि एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे ऊपर आप नहीं ले सकते हो। एमआरपी वहाँ छपी हुई रहती है, सारे प्रोडक्ट, उससे ऊपर आप नहीं बेच सकते हो। तो आप क्या करोगे, पर आप यूएस में जाओगे, उसी कोक के कैन पे कोई $200 बेच रहा है, कोई $100 में, कोई $50 पे, जगह जगह के हिसाब से बिक रहा है वहाँ पे। पर इंडिया में क्या होता है कि सारे प्रोडक्ट पे एमआरपी छपा होता है, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। वहाँ पे आपको कस्टमर जो भी दुकानदार है या जो भी बेच रहा है, तो वो कस्टमर को उस रेट से ज़्यादा बेच नहीं सकते हो, कितना भी आप कुछ कर लो, तो वहाँ पे आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। स्विगी ले लो, आज के समय में जोमेटो ले लो, 1 मिनट में 2 मिनट में मिनट में डिलीवरी, प्रॉफिट नहीं बन रहा है। मार्केट शेयर उनका उठा के देख लो, कई महीनों का प्रॉफिट नहीं है, वो जो बबल बन रहा है और कुछ नहीं है। इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट उठा रहे हैं, बड़े बड़े बिग डील्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनका सिर्फ उसकी वजह से आपको दिख रहा है कि इतनी बड़ी कंपनी बन गई। आप मार्केट में तो जाके देख लो, कंपनी बड़ी नहीं है, इसलिए बनी कि उन्होंने कस्टमर से बेस पे नहीं बन रहा है। कस्टमर क्या करता है कि ठीक है जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, या पिज़्ज़ा हो गया, पिज़्ज़ा ठीक है 1 मिनट लेट हो गया तो आप नहीं लोगे, ठंडा हो गया, आप बोलोगे नहीं चाहिए, रिटर्न हो गया, तो क्या पैसा क्या बनेगा, नहीं बनेगा। कस्टमर, इसलिए इंडिया में कस्टमर सेंट्रिक बहुत सेंट्रिक है, कंप्रेसिव टाइप का बहुत वेड है। पर यूएस का जो मार्केट है बहुत फ्री टाइप का, जो वहाँ पे आप पैसा बना पाओगे। पर इंडिया की मार्केट बहुत डाइवर्सिफाइड है, तो आपको समझना होगा कि इसकी मार्केट कौन सी मार्केट कितनी बड़ी है, वो पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा, फिर उस मार्केट में आप जंप करो, उसके फाइंड करो क्या डेली का कॉस्ट क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा, और क्या कस्टमर का डिमांड है। बस, और आप कोई भी चीज़ बेच रहे हो तो कस्टमर से पहले फीडबैक ले लो, क्या कस्टमर को उसकी डिमांड है।
अब ऐसे ही आपने प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट पे खर्च कर दिया, डेवलपमेंट पे खर्च कर दिया, एम्प्लॉय सब चीज़ आपने खर्च कर दिया, बाद में आपका प्रोडक्ट चला ही नहीं, तब करोगे क्या? प्रोडक्ट नहीं चला तो आपका सारा मनी वेस्ट, टाइम वेस्ट। इसलिए आप पहले कस्टमर के पास जाओ, कस्टमर से डिमांड लो। इन्वेस्टर का क्या है, कस्टमर आपके पास आएगा तो इन्वेस्टर आपके पास खुद आएंगे, ये चीज़ आपको समझना होगा। आज के समय में लोग सोचते हैं इन्वेस्टर आ जाए, फंडिंग उठा ले, ये चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, नहीं होता ऐसा। आप एक समय में उठा तो लोगे, चल लोग कस्टमर पर आगे जाके इन्वेस्टर का ट्रस्ट नहीं जीत पाओगे। आप अगले इन्वेस्टमेंट जाओगे तो वो इन्वेस्टर बोलेगा ये पैसा डुबा देता है, ये इसके ऊपर मत लगाना। क्यों? क्योंकि आपका ट्रस्ट अब जीत नहीं पाया, आपने पैसा उस इन्वेस्टर को डुबा दिया, वो आपके ऊपर लगा पैसा। आपको समझना होगा, पहले मार्केट सेगमेंट समझ लीजिए, बेटर होगा। आइडेंटिफाई कीजिए, अगर मार्केट बड़ी है तो उस मार्केट में जाइए, नहीं है तो उस मार्केट को छोड़ दीजिए। अगर मट्टी का मार्केट आपने सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि आपने सोशल मीडिया सेलेक्ट कर लिया, बिग उसमें सारी बड़ी जाइंट कंपनी है, या मेटा में सेलेक्ट कर लिया, तो वहाँ पे आज फेसबुक है, फेसबुक का जो सारे को तो वो खा जाएगा, सारे कंपनी को जितनी भी छोटी है, तो अगर वो आपको तो ख़त्म कर देगा, या नहीं तो वो आपको एक्वायर कर लेगा उस कंपनी में। आपको वो समझना होगा, पहले आप मार्केट सेगमेंट को क्लियर कीजिए, कितनी बड़ी मार्केट है। अगर मार्केट बड़ी है तभी आप उसमें एक्वायर जाइए, अगर नहीं है तो नहीं बनाइए। आप उसमें देखिएगा कि उसमें कि क्या आपका यूनिक सेलिंग प्राइस है, आप कस्टमर को क्या बेटर दे सकते हो उससे अलग, आपका कॉम्पिटिटर से वो बेटर रहता है, तभी आपका कस्टमर आपसे खरीदेगा कोई चीज़।